Hello learners, welcome to the Bypasted. Today I have something very unique for you. Well, you may have heard of something called OSSTT examination. It is basically an examination conducted by the government of Odisha in order to identify teachers, like deserving teachers for several teaching posts in Odisha. Like OSSTT stands for Odisha Secondary School Teachers Eligibility Test. It is actually a kind of examination that is conducted by the state. However, you might have heard of this thing called TET, Teachers Eligibility Test. Okay, this is conducted in the central level. However, state level examinations are conducted also for teachers eligibility test like OSST and things like that. So today I have this particular test which was conducted today itself, okay, and I have picked up the compulsory English part which is of 20 marks, and I'm going to discuss these things with you. Well, at the very outset, I would like to talk about this that guys, you guys, whatever things are like taught in the in the school in the classrooms, right? Class in class 8th, 9th and 10th, basically all those things come in such kind of examinations, and once you have have a good command over whatever you've learned in the school days, your life is going to be super easy in future. Like let's talk about this particular examination. Unless you have this particular certificate, you are not going to get any kind of government teaching jobs. All right, so let's see whatever we've learned so far, like in classes. Okay, those of you who have been my direct student at school, okay, those people might find it very easy, and for those people who I have not been able to teach online, even those people are going to be benefited soon once I start making videos on those. So without any further delay, let's discuss these questions that came up in today's examination on 9th February 2022. This is one question paper from that, and let's discuss. The first and foremost question here comes is the word laughed. Okay, the word laughed, right? The word laughed is pronounced as what? These are all examples of your phonetic symbols. Okay, phonetic transcriptions are given. So which of these is most appropriate? So the correct answer would be laughed. Okay, and not to be confused with this one, and it never ends with D. All right, and it's never even the short one. So always remember that. Okay, the D in laughed is pronounced as T. Okay, and it's a long A. Okay, so laughed. So I'm not going super speed with this, and you may watch it with 2x speed, because I am actually making this video for my students who may be benefited out of this. Okay, my school students to be specific. Okay, so let's go for the next question, and once again I repeat, for this the correct answer is option A. Now question number 22, she got dash her examination all right. Now here directly two things will be cut, up and on. Okay, these two has no meaning, but when you say got round, okay, when you say got round or got through, they make some sense actually, because both of these words, by the way, are so closely related that one student will definitely be confused. Okay, it's very carefully chosen question actually. Now you see, when you say she got round the examination, it simply means that she passed the examination. And when you say she got through the examination, it means to succeed in the examination. So in one place it means that somebody is just passing it, okay, just passing the exam, and in another case it means that somebody just succeeded or got success, okay, in the exam. Now both are so close, right? But then you have to think about this word all right, मतलब ठीक ठाक से, ठीक है. सो ठीक ठाक से आप पास करते हो या सक्सेस होते हो. देखो, पास का मतलब दो ही चीज होता है, यस होगा नहीं तो नो होगा, है कि नहीं. पास किया या नहीं किया. और अच्छे से पास, मुश्किल से, मतलब ऐसे तो नहीं होता ना, अच्छे से पास हुआ, ओके, अच्छे से पास नहीं हुआ, अरे पास होते हैं नहीं तो फेल होते हैं, सिंपल सी बात है. यस और नो में चॉइस खत्म हो जाता है. लेकिन सक्सेस अगर हो रहे हो तो अच्छे से हुआ या फिर उतना अच्छा नहीं हुआ, ये हो सकता है, राइट. सो इन दैट सेंस गॉट थ्रू विल बी द करेक्ट आंसर, बट नॉट गॉट राउंड. गॉट राउंड मीन्स पास, गॉट थ्रू मीन्स सक्सीड. So here the most appropriate answer would be got through. Let's move on to question number 23. He has spoken to the headmaster. Okay, he has spoken to the headmaster. This is the question here, and question is
द सेंटेंस कैन बी रिटन इन पैसिव वॉइस। ओके, किस तरह से हम लोग इसको पैसिव करेंगे? तो अब हम लोग कभी कभार होशियार होकर ना ऑप्शन से क्वेश्चन तक भी जाना चाहिए। ऑल द टाइम यू शुड नॉट लाइक थिंक इन रूल्स। ओके, थोड़ा सोच लो। यहाँ पे देखो ये क्या लगाया है, हैड लगाया है। यहाँ पे देखो हैड लगाया है। जबरदस्ती टेंस क्यों चेंज कर देंगे हम? थोड़ी रिपोर्टेड स्पीच है तो कोई टेंस चेंज होगा नहीं, तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचा है, एक है हैज, ये भी हैज, दोनों में हैज है, सही है, बराबर है। यहाँ पे बीन लगा है, यहाँ पे भी बीन लगा है, सही है। यहाँ पे देखो स्पोकन लगाया और यहाँ पे लगा है स्पोकन टू। सो ये दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे देखो टू लग के आया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको भी यहाँ पे टू लेना है। ओके, ऐसा ही होता है पैसिव में। ठीक है, तो जैसे कि ही इज लाफिंग एट मी, आई एम बीइंग लाफ्ड एट। ओके, सो जो एट होता है, जो प्रपोजिशन होता है ना, वो प्रपोजिशन को हम लोग लेना पड़ता है। सो यू शुड टेक टू एंड डी शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 24। 24 में बताया जा रहा है कि नीदर द हेडमास्टर नॉर द टीचर्स डैश प्रेजेंट इन एट द मीटिंग। ओके, नीदर द हेडमास्टर नॉर द हेडमास्टर। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, subject verb agreement. So the students who have who in class 9th and 10th they already know this subject verb agreement. So जहाँ पे भी आप लोगों को ये combinations आते हैं जैसे कि neither nor either or okay और nor, ये सब जहाँ पे भी आते हैं क्या होता है यूजुअली, अगर दो सब्जेक्ट्स दिए गए जैसे कि आप लोग देखो हेडमास्टर, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, यहाँ पे टीचर्स है सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पे जो वर्ब लगने वाला है इसको हम लोग एक सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या फिर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इसके बारे में सोचना है। नाउ व्हाट शुड वी डू? शुड वी यूज हेडमास्टर एज द सब्जेक्ट एंड कंसिडर हियर अ सिंगुलर वर्ब, और शुड वी कंसिडर टीचर्स एज द सब्जेक्ट एंड कंसिडर अ प्लूरल वर्ब हियर? So now you need to apply your brain and understand this, that as the rule says, if you have either or, neither nor, then you have to always make your verb agree with the nearest subject to the verb. So nearest यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है आपका verb, और इसके नज़दीक में क्या है? इसके नज़दीक में जो सब्जेक्ट है आपका टीचर्स है, और हेडमास्टर तो बहुत दूर की बात है। तो टीचर्स प्लूरल है, ठीक है, टीचर्स प्लूरल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से प्लूरल वर्ब को ढूंढना होगा। तो देखो प्लूरल कौन है, तो प्लूरल ढूंढने से पहले सिंगुलर वर्ब को काट देते हैं, इजी हो जाएगा। वॉज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, दोनों काट दिए। अपने पास दो प्लूरल वर्ब्स हैं, एक है हैव और दूसरा है वर, तो दोनों में से कौन सा सही होगा? चलो पढ़ के देखते हैं। नीदर द हेडमास्टर नॉर द टीचर्स हैव प्रेजेंट, डज इट मेक एनी सेंस? नो। ओके, देन क्या होगा? इसका आंसर होगा वर प्रेजेंट। क्यों होता है? अगले क्लासेस में, मतलब आई ट्राई टू मेक सम वीडियोस व्हाइल आई स्टार्ट टीचिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। इट विल बी सुपर इजी फॉर एवरीवन एक्चुअली। Those who are preparing for OSSTT examinations also can be benefited from this. Okay, let's go for question number 25. He ordered for a good deal of sacred books. Okay, he ordered for a good deal of sacred books. अब यहाँ पे क्या करना है? देखो, बोल रहा है कि rewrite the sentence correctly. Okay, it is asking us to rewrite the sentence correctly. Okay, let's find out. He ordered a good number. ये number कहाँ पे आ गया? कहाँ से आ गया ये number? Okay, we have here good deal. Deal we are talking about, and where is this number coming from? Again यहाँ पे भी देखो दिख रहा है number, ये तो कट गया, फिर ये भी कट गया। क्या बोल रहा है? good deal of. Okay, चलो यहाँ पे क्या लिखा है? He ordered a good deal of sacred books. Okay, ordered a good deal of okay sacred books. चलो यहाँ पे ये जो फॉर था ये तो गलत ही था, चलो इसको काट दिया यहाँ पे, तो ये सेंटेंस अभी हमको सही दिख रहा है। अब लास्ट वाला देखो, ये ऑर्डर्ड ए गुड नंबर, फिर से नंबर आ गया, तो सीधा सीधा हमें पता चलता है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एंड ऑर्डर्ड के बाद अननेसेसरली यहाँ पे फॉर नहीं लगता है, तो आपका आंसर हो जाता है ही ऑर्डर्ड अ गुड डील ऑफ सीक्रेट बुक्स। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, अगेन अनदर क्वेश्चन ऑन फोनेटिक्स। स्टेट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ क्लाइम। क्लाइम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है पूछा है यहाँ पे। ओके, तो यूजुअली गाइस सिंपल चीज है कि बी साइलेंट रहता है। यहाँ पे जहां जहां पे बी को प्रोनाउंस किया गया है वो गलत है, तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, चलो ये कट गया। और ये होता है क्लाइम, लेकिन ये क्या लिखा है? क्लेम। ओके, ये फोनेटिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, so that you can get to learn even phonetics. I'll be teaching shortly all those things. So claim भी गलत हो जाएगा। ये क्या लिखा है? क्लीम। क्लीम तो वैसे भी गलत है, एक ही बचा है देखो, क्लाइम। सो यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन डैश। ये भी एक चीज है, टीचर्स लोग डायरेक्टली क्लासरूम में यही एग्जाम्पल देते हुए पढ़ाते हैं जब वो पढ़ाते हैं आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, एक साइड अगर आपका सिंपल पास्ट है, ठीक है, तो दूसरा साइड उसका क्या होता है, उसका होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। तो अब यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है सिंपल पास्ट, रीच्ड मतलब V2 पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, है कि नहीं। तो अगर इस साइड में आपका हो गया है सिंपल पास्ट, तो दूसरे साइड में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कैसे बना होता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखो सबसे पहले हैड कहां कहां पे है उसको चूज करेंगे, यहां पे है, नहीं है, यहां पे है, नहीं है, ये दोनों में है। चलो हैड के बाद क्या लगाना है, V3 लगाना है। देखो हैड भी है यहाँ पे और उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट मतलब V3 किस चीज का है, लीव का, लीव लेफ्ट लेफ्ट V3 फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हैड प्लस आपका V3 हो गया, ये आपका सही आंसर है। हैड बीन लेफ्ट ये कहां से आ गया, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। The doctor said, "Do you have a headache now?" Okay, the sentence can be written in indirect speech. Direct indirect speech के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। अब चलो देखते हैं। पहले यहां पे द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, देखो कैसे लिखा गया है, देखो सारे कॉमन गए हैं। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ, ओके, यहां पे ही भी लगाया गया है, चलो ही भी ठीक है। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट इफ ही, ओके, द डॉक्टर आस्क द पेशेंट, यहाँ पे इफ कट गया है। तो बाय द वे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कहीं पे भी आप लोगों का यस नो क्वेश्चन होता है, जैसे कि ये डू यू हैव अ हेडेक नाउ, ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप क्या दोगे, यस और नो। डू यू हैव अ हेडेक नाउ, यस, और यू कैन से डू यू हैव अ हेडेक नाउ, नो। तो ये जब भी यस नो क्वेश्चन होते हैं उसका कनेक्टर कभी भी इफ और वेदर रहता है। ठीक है, तो जहां तक इफ और वेदर का सवाल है सही है, लेकिन अगर दैट लगा देते हो तो वो गलत है, इसलिए ये ऑप्शन पहले कट गया। अब ये ऑप्शंस में से तीनों के तीनों देखो, द डॉक्टर आस्क्ड इफ द पेशेंट, ओके, आस्क्ड द पेशेंट इफ ही, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ ही, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ ही, यहां तो कॉमन गया है। तो कहां चेंज हो रहा है, चलो देखते हैं। ही हैड अ हेडेक देन, ही हैज अ हेडेक नाउ। अच्छा, तो यहां पे और एक चीज हम लोग देखेंगे, ऑप्शन बी कैसे कट जाएगा, देखो ये गलत कैसे हो गया। देखो नाउ अगर दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ को करते हैं हम लोग देन, तो यहाँ पे नाउ को नाउ लिख दिया है तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा ये। ओके, बाकी बच गया, यहाँ पे भी देन है, यहाँ पे भी नाउ लिख दिया गया है, देख रहे हो, तो ये भी आपका कट गया। तो एक ही आंसर आपका बच जाता है, ऑप्शन ए। समझ रहे हो, आंसर से भी क्वेश्चन तक आराम से जा सकते हो। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ ही हैड अ हेडेक देन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, इनफैक्ट द करेक्ट आंसर। Okay, let's go for number 29. He is very intelligent boy. Okay, he is very intelligent boy. Express the meaning of this sentence in an exclamatory sentence. अब इसको क्या करना है, ओके, देखो पहले तो ये दोनों कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, हाउ लगता है जब आप वर्ब के बारे में बात करते हो, तभी अब हम हाउ लिख के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे कि ही प्लेज ब्यूटिफुली, हाउ ब्यूटिफुली ही प्लेज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लेज की बात कर रहे हैं, एक्शन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो जब हम लोग मेन वर्ब के बारे में या फिर एक्शन वर्ड के बारे में बात करते हैं, जैसे कि स्पीक्स, गोज, रन्स, ओके, ये सारे वर्ड्स जब भी लगे होते हैं हम हाउ लगा के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हाउ मतलब कोई ऐसा एक्शन वर्ड है ही नहीं। इज देयर एनी एक्शन वर्ड, लाइक कोई एक्शन दिखा रहा है जैसे, कोई भी वर्ड है नहीं, तो ये दोनों कट गए, हाउ हाउ। अब बच गया व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय कॉमन गया है। तो डिफरेंस यहां पे है इज ही और ही इज में। याद रखिएगा आप लोग, कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है, तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है और ये इज आपका वर्ब है। तो एक सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर बनने वाला है, सब्जेक्ट कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, बहुत ही आसान ट्रिक्स और टेक्निक से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइज क्या बताया मैंने आप लोगों को कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं और फिर उसके बाद वर्ब्स आते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पे पहले वर्ब आया है और फिर सब्जेक्ट आया है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्री, सब्जेक्ट और वर्ब कहीं पे भी मतलब जितने सारे सेंटेंसेस होते हैं हर जगह में यही होता है, लेकिन सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके सामने ही मतलब चेंज होता है ऑर्डर, पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स डैश December 31st।
ओके, ये बहुत ही सिंपल चीज है। जब कभी भी हम लोग ऐसे मंथ के बारे में बात करते हैं, मंथ यानी कि क्या है, मंथ के बारे में अगर बात करेंगे तो यूजुअली इन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग जब डेट मेंशन किए होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑन, नॉट इन। okay, in is used for a period of time, right, and on is used for a specific point of time, so यहाँ पे on a particular date, right, therefore it should be on. okay, remember this, कभी भी डेट होते हैं, आप यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो जाना कि दिसंबर पहले लिख दिया है तो इसलिए इन लगाना है बोल के, इन नहीं लगता है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डेट, वन स्पेसिफिक डेट इज ऑल्सो मेंशन्ड। अगर यहाँ पे सिर्फ दिसंबर होता तो यहाँ पे आप इन लगाते, लेकिन यहाँ पे डेट भी लगा हुआ है इसीलिए आपको ऑन लगाना पड़ेगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तक पर। ओके, 31 में गाइस बेसिकली यहाँ पे एक पैराग्राफ पैसेज दिया गया है। ओके, तो देखते हैं क्या बताया यहाँ पे। रेन सप्लाइज मोस्ट ऑफ द वाटर दैट प्लांट्स नीड, बट अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट ऑलवेज फॉल एट द राइट टाइम ऑफ द ईयर और इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। तो रेन क्या करता है, मोस्ट ऑफ द वाटर जो होते हैं ना, ओके, प्लांट्स जो नीड करता है, ओके, इट सप्लाइज मोस्ट ऑफ द वाटर, बट लेकिन थोड़ा सा परेशानी ये है, अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट ऑलवेज फॉल एट द राइट टाइम। राइट टाइम में क्या होता है, ये रेनफॉल नहीं होता, ये एक दिक्कत है। और इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, और सफिशिएंट क्वांटिटीज में भी बारिश नहीं होती, इसलिए दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स का सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाता है। प्लांट्स में स्टे अलाइव इफ रेन इज स्केर्स, स्केर्स मतलब इनसफिशिएंट। ओके, अगर प्लांट मतलब प्लांट जिंदा रह सकते हैं कभी, जब इफ रेन इज स्केर्स, ओके, अगर पानी कम हो रहा है तभी भी जिंदा रह सकते हैं, बट दे विल नॉट यील्ड सच अ गुड हार्वेस्ट, मतलब अच्छा खासा फसल नहीं दे सकते, ठीक है। सर्वाइव तो कर लेंगे लेकिन अच्छा खासा फसल नहीं दे सकते। दस, फॉर सेंचुरीज मैन हैज डिवाइज्ड मेथड, सो मैन क्या क्या है, अपना अपना टेक्निक्स अडॉप्ट किया है, क्या करने के लिए, सप्लीमेंटिंग नेचुरल सप्लाईज ऑफ वाटर टू हिज क्रॉप्स बाय मींस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, पानी, पानी को अरेंज करते हुए अपने फील्ड्स में, मतलब क्या है, पानी ये करने के लिए, ठीक है, सप्लाई करने के लिए अपना अलग अलग टेक्निक्स लगाया है इंसान। क्या है वो, दीज मेथड्स वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। ओके, ये जो मेथड्स होते हैं क्लाइमेट के हिसाब से ये वेरी करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से क्या करते हैं, वेरी करते हैं, राइट। एंड क्या, द क्रॉप्स एंड, और क्रॉप्स के हिसाब से वेरी करते हैं, एंड अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस, और जो भी पानी का जो रिसोर्सेस होता है, ठीक है, वाटर हो, स्प्रिंग हो, कोई भी चीज हो, पॉन्ड हो, मतलब पॉन्ड हो, स्प्रिंग हो, कोई भी चीज जो भी वाटर रिसोर्सेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन ट्रॉपिकल एंड मेडिटेरेनियन कंट्रीज वाटर इज नेचुरली ब्रॉट टू द क्रॉप्स बाय अ नेटवर्क ऑफ सरफेस डिचेस। तो ये जो मेडिटेरियन एरिया होता है, ट्रॉपिकल एरिया होता है, वहां पे क्या किया जाता है, डिचेस, सरफेस लेवल में क्या करता है, डिचेस मतलब जो बांध जैसा बांध के, ठीक है, उसको पानी को लाया जाता है। दिस इज नोन एज सरफेस इरिगेशन, इसको क्या कहा जाता है, सरफेस इरिगेशन कहा जाता है। ओके, इन सरफेस इरिगेशन वाटर स्प्रेड्स ओवर द सरफेस एंड सोक्स इनटू द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पानी होता है, ठीक है, ये पानी क्या होता है, सरफेस में हर जगह पे स्प्रेड कर जाता है और धीरे धीरे जो ग्राउंड है उसको सोख लेता है, अपने सोख कर लेता है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्केर्स। बहुत ही सिंपल चीज है, आप लोगों को पढ़ने के टाइम पे बताया भी था, स्केर्स का मतलब होता है इनसफिशिएंट, तो यहाँ पे डी होगा ऑप्शन करेक्ट। 32 नंबर, व्हाट इज नोन एज सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन किस चीज को कहा जाता है, ये देखो, ब्रिंगिंग वाटर टू द क्रॉप्स बाय अ नेटवर्क ऑफ सरफेस डिचेस। ये तो सिंपल आंसर है एकदम, अ नेटवर्क ऑफ डिचेस इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, अ नेटवर्क ऑफ डिचेस इन मेडिटेरियन कंट्रीज, ये दोनों मिला, ये भी है और ये भी है, तो अलग अलग लिख दोगे तो ऑप्शन कैसे होगा, फिर नहीं होगा। वाटर सोकिंग इनटू द ग्राउंड सिर्फ इसको कहते हैं, नहीं, तो ऑप्शन ए विल बी योर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, क्या बोला है, बट दे विल नॉट येल्ड। ओके, बट दे विल नॉट येल्ड, व्हाट डज द वर्ड दे रेफर टू। दे किसके बारे में बोला गया है, प्लांट्स के बारे में बोला गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैज बीन डिवाइज्ड फॉर सेंचुरीज। ओके, क्या सेंचुरीज के लिए क्या क्या सब डिवाइस किए गए हैं, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स टू रिप्लेस नेचुरल सप्लाईज ऑफ वाटर, नो, व्हाई रिप्लेस क्यों करोगे, मेथड्स ऑफ सप्लीमेंटिंग नेचुरल सप्लाईज ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स बाय मींस ऑफ इरिगेशन। okay, methods of supplementing natural supplies of water to the crops by means of irrigation, and क्या finally methods to supply water to plants in sufficient quantities, तो हो ही नहीं सकता। okay, और क्या वो लोग ये दो देखो, ऑप्शन दो बचे यहाँ पे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए बोल रहा है कि
मेथड्स ऑफ इरिगेशन डिवाइस किए हैं, या फिर मेथड्स ऑफ सप्लीमेंटिंग नेचुरल सप्लाईज ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स बाय मींस ऑफ इरिगेशन। यहाँ दोनों में से अगर हम लोग पढ़ेंगे क्लोजली तो दिस seems more appropriate. Okay, methods of supplementing natural supplies of water, okay, to the crops by means of irrigation. ठीक है, ये सीखे हैं, तो ये भी है लेकिन इससे ज्यादा बेटर यही है, ऑप्शन सी। ओके, नंबर 35, what according to the writer is an unfortunate thing? क्या अनफॉर्चुनेट थिंग है? रेन सप्लाइंग, ओके, रेन सप्लाइंग इनफ वाटर टू द प्लांट्स। इनफ वाटर कहाँ सप्लाई कर रहा है? ओके, तो अगर करता तो अनफॉर्चुनेट कैसे होता? रेन नॉट ऑलवेज फॉलिंग एट द राइट टाइम ऑफ द ईयर, यस। ओके, रेन फॉलिंग इन सफिशिएंट क्वांटिटीज हो ही नहीं सकता, रेन बीइंग स्केर्स नहीं, तो ये होगा आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, रेन नॉट ऑलवेज फॉलिंग एट द राइट टाइम ऑफ द ईयर। ओके, अब यहाँ पे एक पोम दिया गया है। ओके, आई नॉट बी एक्चुअली डिस्कसिंग एवरीथिंग, बट या लेट्स ट्राई टू गो फॉर इट क्विकली। She dwelt among the untrodden way beside the springs of Dove, a maid whom there were none to praise and very few to love। इसका मतलब क्या है? She dwelt among the untrodden way। untrodden way मतलब जिस जगह पे कोई चल के नहीं जाता है, ठीक है, untrodden way में वो रहती थी। beside the springs of Dove, ओके, वो जो Dove springs थे उसके साइड में रहती थी वो। a maid मतलब एक लड़की, ठीक है, whom there were none to praise मतलब उसको प्रेज करने के लिए कोई नहीं था, या फिर उसको लव करने के लिए भी कोई नहीं था। वायलेट बाय मोसेस स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। ओके, इसका मतलब सिर्फ यही बताया जा रहा है कि शी इज वेरी ऑब्सक्योर, पीपल डू नॉट नो हर, ओके, इनफ। ओके, फेयर एज ए स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। ओके, और एक स्टार की तरह वो दिखती है, बहुत ही फेयर एंड ब्यूटीफुल भी है, ठीक है। शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी। ओके, शी लिव्ड अननोन मतलब शी लिव्ड अननोन का मतलब क्या है? मतलब शी वॉज नॉट वेरी पॉपुलर गर्ल। ओके, शी वॉज नॉट ए वेरी पॉपुलर गर्ल एंड फ्यू कुड नो। ओके, बहुत ही कम लोग इस चीज के बारे में उन लोगों को पता चला कि वन शी सीज टू बी मतलब सीज मतलब स्टॉप टू बी मतलब जब वो मर गई। ओके, सीज टू बी मतलब स्टॉप टू एग्जिस्ट मतलब शी डाइड। जब वो मर भी गई तो बहुत कम लोगों को उसका आइडिया हुआ। बट शी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। लेकिन आज वो अपनी ग्रेव में है एंड ओ मतलब वो दुख के साथ कह रहे हैं कि द डिफरेंस टू मी, और मुझे ये बहुत ही, ठीक है, ओके, इट हैज क्रिएटेड अ बिग डिफरेंस टू मी, ही सेज, ओके, बिकॉज ही केयर्ड फॉर द गर्ल। ऑलराइट, नाउ फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट दिस। ओके, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रेज? प्रेज का एंटोनिम क्या है? प्रेज का एंटोनिम क्या है? प्रेज का एंटोनिम है डिस्प्रेज। ओके, एक्सॉल्ट मतलब किसी को ऑनर करना। ओके, इम्प्रेज वर्ड होता ही नहीं है। अनप्रेज जो वर्ड होता है, अनप्रेज नहीं होता, अनप्रेज्ड होता है, दैट इज द एडजेक्टिव फॉर्म। ऑलराइट, सो इवन दिस विल बी इनकरेक्ट, सो डिस्प्रेज इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन लूसी सीज टू बी बताया था आप लोगों को, क्या होगा इसका मीनिंग? डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइट, नो, डाइड, यस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 38, by comparing Lucy with a violet, okay, with a violet by a mossy stone, the poet is drawing our attention to the dash of Lucy। चलो आंसर से क्वेश्चन तक जाएंगे। डिग्निटी की बात तो हो ही नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में नो, इनोसेंस के बारे में कोई बात किया भी नहीं गया, और लव तो उसको कोई करता ही नहीं था, तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटी। सो या दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 9, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, दैट इज आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से फॉल्स क्या है? अब वही ढूंढेंगे हम लोग। लूसी लिव्ड क्लोज टू नेचर, ये तो हमें पता है, यस, शी लिव्ड क्लोज टू नेचर। लूसी वाज प्रेज्ड बाय मेनी, सीरियसली, क्या लूसी को बहुत लोग प्रेज कर रहे थे? एब्सोल्युटली नो। सो या ये गलत आंसर है, सही आंसर आपका यही होगा। ओके, ये भी वेरी फ्यू पीपल लव्ड लूसी। ओके, वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग उसको लव करते थे, ऐसा है क्या? ओके, ये भी सही है। ओके, वेरी फ्यू टू लव। ओके, तो ये भी सही आंसर है। ओके, दिस आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया कि फॉल्स क्या है, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। लूसी लिव्ड अननोन टू मेनी, ये भी सही है। तो गलत क्या है यहाँ पे? गलत ये आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, एंड इट इज फॉल्स ऑल्सो। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज शी वॉज नॉट प्रेज्ड बाय मेनी। ओके, लेट्स सी द लास्ट वन। What makes, okay, the poet utter the word oh? Okay, so his grief at the death of Lucy, मतलब उनका दुख जताते हुए, ठीक है, he says oh,
Or others unconcerned about Lucy's death? No, not at all. Others not knowing her? No. Others not loving her? No. He actually talks about his sadness. So option A is correct. ओके तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप क्या क्या आंसर दिए हो और 20 में से आपको कितना मार्क्स मिला है. डेफिनेटली यू कैन you know comment in the comment section if you would like to. Okay, and very shortly actually I'm planning to go for one amazing thing like which will help you crack such kind of things like unseen passages. Okay, whenever it comes in any examination, like in class 9th examination, 10th examinations, as well as OSS, TET. Okay, and different such kind of competitive examinations, you get to find such kind of paragraphs. So I'm going to I'm planning this particular thing where every alternative days, I'll be taking one particular clip from a newspaper and I'll be decoding that. Like I'll just help you learn that meaning of that total paragraph. Also, additionally, what I would do is I would pick up any one or two words from that and I'll explain those important words and how you can use those in your day-to-day life. That's how you can also enrich your vocabulary. Okay, so that's pretty much all about it. And yes, in the very recent time, I'm going to do one more thing. Like shortly I'm going to do one more thing, and that is these different competitive examinations are conducted. Like one more examination was conducted recently, that is OSSC examination by the government of Odisha, right? Odisha Staff Subordinate Staff Selection Commission. Even I've got some questions from that. If you would like me to make an attempt on that also, you can just let me know in the comment section. So well, that's all for the video today. It's been a lengthy one, but it's, I guess, worth it. Okay, thank you so much for staying connected all throughout and meeting in the next session. Thank you so much. Happy learning.